This is a pre-recorded lecture, and the purpose of this lecture is to deal with the type of numerical examples that you can expect in your exams from the topic of logarithmic decrement. Or in general, most of the numericals that have been asked in your previous papers of RTU from the overall topic of damped vibrations is from logarithmic decrement. So the numericals of logarithmic decrement are quite important, and you should know how to deal with the problems of this. See, for any topic, once you have completed the study of that topic, for example, we completed the study of logarithmic decrement. How should you prepare yourself for numerical problems from the topic? In order to do that, what I would suggest is that you should make a small list of all the standard formulae that appear in the entire topic. So if you see, there are about 2 or 3 pages. Only 2 pages are there for this particular topic, logarithmic decrement. Now, what I should do ideally is take a separate blank sheet or maintain a separate notebook in which you should not write down any notes, but you should only put in a compilation of formulae in a sequential order. यानी कि सिर्फ फॉर्मूलों को लिखी हुई एक छोटी सी किताब या एक स्टेपल करके एक बंच ऑफ पेपर्स आप अलग से मेंटेन कीजिए, ताकि उनको आप अलग से रिवाइज करें। नोट्स तो मैंने आपको यहाँ पर दे ही दिए हैं, तो नोट्स आपको अलग से बनाने की लिखने की जरूरत है ही नहीं। सो आई विल शो यू हाउ आई एम गोइंग टू मेक a small notebook or a small compilation of equations from logarithmic decrement. सबसे पहले इसके अपन फॉर्मूले नोट करते हैं। पहले तो कुछ फॉर्मूले मेरे logarithmic decrement में जो काम आएंगे, some formulae that I would be using is, let us start with this. These are going to be important. Formula number 1. Let me write the topic, list of formulae. For viscous damping. The first formula that I would write is that of C suffix C. So it will be 2 root m into k. An alternate formula is also there for this. Is 2m omega n. And to reduce all ambiguity, everybody knows that omega n is under root k by m, where omega n is equal to under root of k by m. You write this also, just in case. Okay. Next one, zeta is equal to c by cc. This is another formula. And what else is there? Let us see. This is how you should compile. See, in the course of derivation, there are a lot of terms that appear. You need not remember everything. But the main formulae that are going to occur again and again, yes, this one. Damped frequency in the case of viscous damped oscillations is omega n under root 1 minus zeta square. Let us note this down also. So the frequency with which things will oscillate in the presence of viscous damping, or which is called as omega suffix d, the natural frequency of oscillation. This is given by omega n multiplied by under root of 1 minus zeta square. Another formula that we have to remember. So we have put this also in our list of formulae. Then let us see which are the other important formulae. Omega d has been taken, and I guess we have sufficiently covered the ground here. Then we have critical damping, over damping, and then let us come to logarithmic decrement.
Now in logarithmic decrement, we start with this particular formula of amplitude. Now this is important for you to remember because you have to start the derivation of logarithmic decrement from this formula. And what is this formula? This is the general formula of measurement of amplitude at any given time t. So using this formula, you just put the value of time, any random time, and it will give you what is the value of amplitude at that time. It will give you this vertical measurement. So this is the importance of this formula. So using this formula, we had derived the expression for delta. So this has to be remembered. Now, as a main formula, I will directly come to the formula of logarithmic decrement. This has been boxed up, so you should remember this. And this also you should remember, but I'm not including it currently. Or if you want, you can include it. We can write this also. Amplitude at any given time t in the case of underdamped viscous oscillations is given by y naught by under root 1 minus zeta square e raised to power minus zeta omega n t, where y naught is the starting amplitude. Okay. With every passing time period, the amplitude will keep on reducing. You know that. You know the curve is like this. Y is plotted here, time is plotted here. So this is the starting amplitude, and then further the amplitude will keep on reducing. So the starting amplitude is y naught. This is what this y naught signifies. And now further down the line, if you want to check what is going to be the amplitude at any given time t, you substitute this time period here, you will get the value of amplitude. So this is one formula. Then the most important formula, that is the expression for logarithmic decrement delta. This is given by 2 pi theta upon under root 1 minus theta square. This is one of the most important formula that you have. Now, what is this logarithmic decrement? Let us once again revise. See, logarithmic decrement in the first place is defined for underdamped oscillations only. So, underdamped viscous oscillations. So, this is what you have in the case of underdamped viscous oscillations, a continuously reducing amplitude. Now delta is defined as the ratio of any two consecutive amplitudes. So any two nearby amplitudes I have to select. Let me say this height is y1 and this height is y2. These are the amplitudes. On the other hand, any near two amplitudes could be y2 and y3 also. If I take this height, let me name this as y. So this logarithmic decrement delta is defined as the natural logarithm ln of either y1 by y2. So you put it here, y1 and y2, if you put here, delta, the definition of delta is complete. Or if you do not like y1 and y2, you take y2 and y3. That is the meaning of any two consecutive. So or delta could also be defined as ln of y2 by y3. Or you could say, can I start with my starting amplitude also, which is y naught? Yes, sure. Or delta is also equal to ln of y naught upon y1. So any two consecutive amplitudes which are sitting next to each other, you select them. In the numerator, you put the previous one or the earlier one, and in the denominator, you put the next one. That is how you do it. Y2, y3, y1, y2. Okay, and take the natural logarithm.
all these values will come out equal to each other. They are all the same because we have already understood that in the case of underdamped viscous vibrations, the amplitudes bear the same ratio when they are taken for consecutive amplitudes. तो रेशियो सेम होगा तो उसका लॉग लेने पर वो भी सेम ही आएगा. सो डेल्टा विल बी द सेम. तो डेल्टा का डेफिनेशन तो इससे आता है. तो एक ये जो डेफिनेशन है इसको भी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो. So your fifth formula was delta is given by this, but this formula can only be used when you know the value of zeta. जब zeta की वैल्यू पता हो तो ही ये डेल्टा का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है. और अगर आपको कोई zeta ना दे और एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू दे दे तो भी डेल्टा निकालना आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody does not give you the value of zeta or the damping ratio, और आपसे कोई कहे कि भाई जीटा बेटा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके मैंने पता किया कि फोर्थ एम्पलीट्यूड मेरा 2 सेंटीमीटर है और फिफ्थ एम्पलीट्यूड मेरा 1.5 सेंटीमीटर है. अब बताओ डेल्टा कितना है. तो बोलना कोई दिक्कत नहीं है. डेल्टा फोर्थ और फिफ्थ आजू बाजू बैठे हुए एम्पलीट्यूड्स हैं. सो डेल्टा विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम एल एन. लिखने का मतलब है ये लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस ई एक्सपोनेंट. इसी को अपन एल एन लिखते हैं. So I can say that if my fourth amplitude and fifth amplitude values are known, I will simply calculate delta by taking natural logarithm of 2 divided by 1.5. Now somebody could ask me, sir, you haven't converted centimeter into meters. There is no need to do this here because you know that even if I convert, in the numerator there is centimeter, in the denominator there is centimeter. These are eventually going to cancel out. So even if you convert it into meters, you will get the same ratio. So there is no need for unit conversion also. And yes, if some paper setter tries to trick you कि भाई मेरा फोर्थ एम्पलीट्यूड तो 2 सेंटीमीटर है और मेरा फिफ्थ एम्पलीट्यूड 15 मिलीमीटर है. Now this is something that you have to convert. Units have to be the same. या तो दोनों मिलीमीटर में हो, या तो दोनों सेंटीमीटर में हो, या दोनों मीटर में. ठीक है. 15 मिलीमीटर मीन्स डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. दोनों को सेम लाने के लिए इट विल बी 1.5 सेंटीमीटर एंड नाउ दे कैन बी यूज्ड. तो एनीवे 2 अपॉन 1.5 करूंगा और उसका ln ले लूंगा कैलकुलेटर से. आई विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा. So we have to remember this formula also कि भाई अगर जीटा नहीं हो तो मैं डेल्टा कैसे निकालूंगा. तो you remember this basic formula. Delta as per its own definition is already defined as natural logarithm of any amplitude divided by the next amplitude n. मैंने कर दिया. यानी कि कोई सा भी रैंडम एम्पलीट्यूड ले लो. ये देखो खूब सारे एम्पलीट्यूड्स हैं आपके पास. आउट ऑफ दिस यू टेक एनी nth एम्पलीट्यूड और उसका अगला एम्पलीट्यूड n+1. तो लार्जर एम्पलीट्यूड n होगा, स्मॉलर एम्पलीट्यूड n+1 होगा. तो बाय nth एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय n+1th एम्पलीट्यूड का नेचुरल लॉग ले लो. दिस विल बी डेल्टा. सो दिस इज वन मोर इक्वेशन फॉर यू टू रिमेंबर. And then there is yet another equation given for logarithmic decrement. Let us see what is that. Another formula for delta. ठीक है. अब यहाँ पर देखो ये क्या बात कर रहा है. If amplitudes of successive crests is given by y0, y1, y2, y3 and so on up to yn. ठीक है. Then we know that according to the definition of delta, y0 by yn का log ले लो, वो भी डेल्टा है. This is delta. या y1 by y2 का log ले लो, ये भी डेल्टा है. इसी तरीके से y2 by y3, y3 by y4, y4 by y5 and like this yn minus 1 upon n. ठीक है. यहां तक का ले लोगे सब डेल्टा 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 डेल्टा. दे आर ऑल इक्वल टू डेल्टा. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां देखिए आप. मैं इन सबको ऐड करना चाहता हूं. भाई मैंने कहा ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है,
इसके बीच में जितनी आ रही है सब डेल्टा है, और ये आखिरी वाला ये भी डेल्टा है। ठीक है, तो ये सब मिला के कितने नंबर हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 n तक गए। तो मैंने कहा अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो क्या n डेल्टा नहीं हो जाएगा? देर आर n नंबर ऑफ डेल्टाज हियर, सब के सब डेल्टा है और ये n तक है। तो मैं अगर इन सबको ऐड कर दूं तो ये n टाइम्स डेल्टा हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो आई हैव डन एन एडिशन जॉब हियर। ये हालांकि सबके सब डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, सब डेल्टा है, बीच वाले भी सारे इंडिविजुअली डेल्टा है, बट आई एम एडिंग दम अप। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू n डेल्टा। नाउ यू नो अ लॉ ऑफ लॉगरिथम which is very famous, logarithm of a plus b। ठीक है, ये देखो, सॉरी, not log of a plus b, this is actually log a plus log b प्लस log c। ऐसे अगर चलते जाओ तो मैं इसमें ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस बी, सॉरी a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। तो दिस इज, ठीक है, तो यानी कि अगर आपका कोई 3 4 आइटम्स का प्रोडक्ट हो रहा हो और आप उसका टोटल लॉग लेते हो तो वो ऐसे स्प्लिट हो जाता है लॉग में, दिस यू नो, राइट। तो अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ log of this plus log of this plus log of this plus there are a lot of things, सबके log ऐड हो रहे हैं। तो मैं इस लॉ के हिसाब से individual addition of individual logarithms of items can be clubbed together as the log of the product of all these quantities। तो उस हिसाब से मैंने एक ln ले लिया और अब इन सारी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट ले लिया। सो नाउ आई हैव y0 by y1 multiplied by y1 by y2 multiplied by y2 by y3 and so on till yn minus 1 upon yn। अब आप इसमें देखोगे कि इस पूरी सीरीज में y1 कैंसिल, y2 कैंसिल, y3 कैंसिल, हर चीज ऊपर नीचे वाली कॉन्जिक्यूटिवली कैंसिल हो जाएगी। यहाँ प्रीवियस वाले से ये yn minus 1 भी कैंसिल। And now all that remains inside the bracket is yn in the denominator and y naught in the numerator. So eventually my n delta is equal to ln of y naught upon yn, or bringing this n below here the denominator, I get another formula of delta. Delta is equal to 1 upon n ln y naught upon yn। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, this formula is useful when values of consecutive or successive amplitudes is not given or missing and we only have some initial amplitude and some other amplitude n oscillations down the line। इसको क्या मतलब है ये मैं समझाता हूं आपको। पहले तो ये फॉर्मूला अपन अपने लिस्ट में इंक्लूड कर लें। This is formula number 7 from viscous damping. Yet another formula for logarithmic decrement delta, which is 1 upon n ln x naught upon x की जगह y भी यूज कर लो, it could be anything, और अगर रोटेशनल है तो यहाँ पे थीटा भी आ सकता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि भाई मैंने x को तो प्लॉट किया वर्टिकल एक्सिस पे, टाइम को प्लॉट किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। आई हैव माय ऑसिलेशंस व्हिच आर रिड्यूसिंग इन एम्पलीट्यूड, ऑब्वियसली तभी लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बनता है। यस, ऐसे ऑसिलेशन आ गए। अब मैंने कहा कि भाई मेरे को ये तो पता है जहां से मैंने स्टार्ट किया था, सो लेट अस से आई नो द वैल्यू ऑफ x नॉट एंड इफ आई हैड नोन द वैल्यू ऑफ x1 आल्सो, तब तो मैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फटाक से बना लेता। डेल्टा इज इक्वल टू ln ऑफ x नॉट अपॉन x1, कॉन्जिक्यूटिव हो गया ना ये तो। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई, किसी कारणवश
मेरे को नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड नहीं पता था, मेरे को थर्ड वाला पता, आई ओनली न्यू x2। तो अब मैं ये कर सकता हूँ क्या, x0 अपॉन x2 का रेशियो ले लूं और ln ले लूं, ये तो नहीं चलेगा, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, ये मिस हो गया। So I have a missing amplitude. I know the initial amplitude x0, and then down the line I know some other amplitude, but it is not the consecutive amplitude. Some in between amplitudes have been missed. ठीक है, तो अब देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरे को सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करना है, इससे भी मुझे डेल्टा मिल जाएगी। तो मैंने ये कहा कि एक्स नॉट पता है क्या, हाँ पता है, फिर कौन सा वाला एक्स पता है उसका नंबर बताओ, तो मैंने कहा कि मेरे को x2 पता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको x2 पता है, तो कितने ऑसिलेशन के बाद आता है ये देखो एक ऑसिलेशन हुआ, फिर दूसरा ऑसिलेशन हुआ, सो आई नो x2 फ्रॉम द सेकेंड ऑसिलेशन। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, तो टोटल ऑसिलेशन कितने बीच में पड़े हैं, दो ऑसिलेशन, तो दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड लाइक दिस। नाउ इन दिस केस माय स्मॉल n विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि दो ऑसिलेशन स्किप करके फिर मेरे को अगला एम्पलीट्यूड पता है। So my delta will be calculated as 1 upon 2 ln of x naught upon x2। ये है फॉर्मूला। तो अब आपने देखा कि कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड बताओ, फिर तब तो सीधे सीधे लॉग ले लो, और अगर कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/n ln x नॉट अपॉन एक्स एन के फॉर्मूले से आप कोई सा भी डाउन द लाइन एम्पलीट्यूड पता हो तो उससे भी पकड़ सकते हैं। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। मेरे को y1 पता है, फिर उसके बाद y5 पता है, इसके बीच की सब चीजें गायब है, somehow I do not know it। how do I calculate delta, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कैसे निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितने मिस हुए हैं ये काउंट करो, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो n हो गया 4, फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू 1/n ln ऑफ y नॉट अपॉन y। तो इसमें स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड कौन सा है जो आपको पता था, वाई नॉट भी नहीं पता था, मुझे y1 पता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा डेल्टा हो जाएगा, n तो 4 है, इट इज 1/4 ln ऑफ 1/4 ln ऑफ फर्स्ट एम्पलीट्यूड क्या था, y1 था जो मुझे पता है, डिवाइडेड बाय लास्ट एम्पलीट्यूड कौन सा पता था, y5। तो आपने पहले कह दिया कि y1 की वैल्यू पता है, y5 की वैल्यू पता है, तो यहाँ रख दो और 1/4 से डिवाइड कर दो इसके नेचुरल लॉगरिथम को, तब भी आपको डेल्टा मिल जाएगा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो वी नाउ हैव थ्री फॉर्मूला फॉर डेल्टा, और जहां जहां जिस तरीके से डेल्टा को यूज करना हो वो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। अभी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे, देन वी विल हैव अ लिटिल बिट मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। So anyway, we have compiled all the required information to start with our numerical problems। अब कुछ स्टैंडर्ड टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, जो कि जनरली आपके आरटीयू के अंदर उसी टाइप के पूछे जाते हैं। So this will be helpful for you। Okay, so we have a data set of 7 formulae like this। तो आपने क्या किया, मैं आपको एक तरह से ये भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरीके से फॉर्मूले का सेट तैयार करके रखना है और उसको अच्छी तरह से याद करके एग्जाम में जाना है, ताकि किसी भी फॉर्मूले की जरूरत पड़े तो आप मेंटली उसको रिकॉल करें और उसको अप्लाई करें। तो वी हैव बॉक्स इक्वेशंस लाइक दिस। ये सारे फॉर्मूले अपन के पास में याद है।
नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी ये है, क्वेश्चन नंबर 1। We have a vibrating system for which the following data is given. The mass of the vibrating system is 3 kg. The spring constant or the stiffness of the elastic components is 100 Newton per meter, and the coefficient of damping or damping coefficient or damping constant is given by 3 Newton second per meter. Find damping factor. Second, find natural frequency of damped vibrations. Third, logarithmic decrement. Fourth, number of cycles after which original amplitude is reduced to 20%. And just for your information, this question was asked in RTU 2020. Sorry, 2010. 2020 में तो एग्जाम हुआ नहीं था। 2010 के पेपर से आरटीयू का क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले अपन डैम्पिंग फैक्टर पे, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज डैम्पिंग फैक्टर। अब आपको यहां पर आता है सबसे पहला कंफ्यूजन, डैम्पिंग फैक्टर किस चीज को कहते हैं। डैम्पिंग फैक्टर कई लोग फटाक से बोलेंगे सी को कहते हैं। नो, दिस इज डैम्पिंग कांस्टेंट। और डैम्पिंग कोएफिशिएंट, सी को या तो कांस्टेंट के नाम से पुकारा जाता है या कोएफिशिएंट के नाम से पुकारा जाता है, फैक्टर नहीं है। फैक्टर कौन सा है डैम्पिंग का? जीटा। जीटा को बोलते हैं या तो डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं या फिर रेशियो बोलते हैं। डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर पूछा जाए तो वो जीटा है, और जीटा की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज डायमेंशनलेस। तो बेसिकली वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीटा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, एम दे रखा है, के दे रखा है और सी दे रखा है। ठीक है, और जीटा निकालना है। सबसे पहले जीटा का कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है क्या आपको? वी गो बैक इनटू आवर मेमोरी, और मेमोरी में आपने इस चीज को अच्छी तरह से याद किया था, ये सारी लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बना करके यू हैव मेमोराइज्ड। ठीक है, तो नाउ यू रिमेंबर दैट जीटा का एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, सी अपॉन सी सी है। पहले तो एक बार इसको लिख लो, देखते हैं क्या निकलता है। जीटा इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी। अब देखो क्या इनमें से कोई चीज गिवन है क्या? यस, सी की वैल्यू गिवन है,
तो 3 है, ये पता है अपने को। सो दिस इज 3/cc। cc नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। cc को निकालने का कोई फॉर्मूला है? वंस अगेन वी गो बैक इनटू आवर मेमोरी, याद किया हुआ है। ये देखो, cc के दो ऑप्शन हैं, या तो m और k यूज करके cc निकाल लो, या m और ओमेगा n निकाल करके cc निकाल लो। तो मैं ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करूंगा, क्योंकि m और k दोनों मेरे पास में गिवन डेटा है। So now I make use of another formula for CC, which I remember as 2 root mk। और मेरे गिवन डेटा में जाकर के चेक कर रहा हूं, मेरे पास m भी है, k भी है। ठीक है, तो इट इज 3 एंड 100 एंड ऑल द थिंग्स गिवन आर इन SI यूनिट्स। ठीक है, तो CC कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय m तो है 3 kg, मल्टीप्लाइड बाय k है 100। ठीक है, तो 2√300 से मेरा सीसी का वैल्यू निकल जाएगा। अब सीसी की वैल्यू निकल गई, तो मैं सीसी की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा और 3 डिवाइडेड बाई सीसी करके जीटा निकाल लूंगा। प्लीज कैलकुलेट दिस थिंग, नहीं तो अपन एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं यहाँ पे। लेट मी कैलकुलेट इट। थोड़ा सा आपको ब्रेक देना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर। Let me calculate CC first. CC should be equal to 2 under root of 300. That is 34.64. And please always make it a habit to write the units also. CC की यूनिट वही है जो C की यूनिट है, और C की यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ओके, डन। अब CC की वैल्यू मिल गई है, लेट अस पुट इट हियर। So basically I will get my zeta as 3 divided by 34.64. Okay, 3 divided by 34.64 equal to 0.0866. This is my zeta। फर्स्ट पार्ट का आंसर अपन ने निकाल लिया है, 0.0866। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड पार्ट। आंसर आ गया है, यहीं पे लिख लेते हैं अपन। Now let us go to the second part। Natural frequency of damped vibration। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? ओमेगा एन पूछ रहा है क्या? नो no। अगर ओमेगा एन पूछ रहा होता तो सिर्फ नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलता, या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस बोलता। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशंस का क्या मतलब है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशंस का मतलब है डैम्पिंग के साथ जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उसकी फ्री वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी, फ्री वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब है दिस गाय एक्चुअली वांट्स द वैल्यू ऑफ ओमेगा डी। और विस्कस डैम्पिंग हो रही है, वापस से अपनी मेमोरी में जाकर के खंगालेंगे कि भाई ओमेगा डी की कोई फॉर्मूला। यस वी हैव इट, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा की वैल्यू पता कर ली हमने पिछले वाले क्वेश्चन में। अब एक ओमेगा एन चाहिए। ओमेगा एन का फॉर्मूला अब तक तो सबको रट जाना चाहिए। ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड वाइब्रेशन which is always given by under root of k by m। तो k और m दोनों हैं अपने पास। k is 100, m is 3, तो ओमेगा n निकाल लो। This should come out as under root of 100 divided by 3, which comes out to be 5.77। यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब ओमेगा एन पता लग गया, जीटा पता लग गया।
ओमेगा डी निकाल लेंगे। तो ओमेगा डी इज इक्वल टू 5.77 जो कि ओमेगा एन है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा की वैल्यू कितनी है, 0.0866। So finally my omega d should be, let me calculate it, 5.77 multiplied by under root of 1 minus 0.0866 square, 5.75. This is another answer. Second part का आंसर भी आ गया, 5.75 रेडियंस पर सेकेंड। यहीं पे नोट कर लेते हैं। सेकेंड वाले का आंसर भी नोट कर लिया। Now let us go to the third part. Third part says find the logarithmic decrement. सीधे सीधे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के पीछे जाके देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले याद हैं। ये देखो भाई, तीन फॉर्मूले हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के। एक फॉर्मूला है जिसमें जीटा यूज होता है, एक फॉर्मूला है जिसमें एम्पलीट्यूड्स पता होने चाहिए, वाई एन प्लस वन, ये सब पता होने चाहिए, और एक तीसरा फॉर्मूला है उसमें भी एम्पलीट्यूड्स और कॉन्जिक्यूटिव के बीच में नहीं हो, थोड़े से मिसिंग हो, तो वाला फॉर्मूला है। तो अपने को ऑलरेडी जीटा पता चल चुकी है, तो अपन सीधे सीधे जीटा का ये फॉर्मूला वाला, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो योर डेल्टा कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड एज 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सारी कैलकुलेशन मेरे को मैनुअली आपको हाथ पकड़ा के करने की जरूरत नहीं है। जीटा की वैल्यू इसमें रखें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर डेल्टा। ठीक है, अच्छा, मे बी somebody might be interested in carrying out this calculation to check whether you are getting the right answer or not. So just for their sake, let me do this. Theta is 0.0866. So let me calculate. This is 2 into pi multiplied by 0.0866 divided by under root of 1 minus 0.0866 square. So this comes out as 0.546. This is another answer. लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये रेशियो का लॉग है, तो इसलिए इसकी कोई यूनिट हो नहीं सकती। इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो 0.546, दिस इज अनदर आंसर दैट वी शुड नोट डाउन। Okay, now finally something interesting in which you have to apply a little bit of brain. Number of cycles after which original amplitude is reduced to 20%. इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि कितने साइकिल बीत जाएंगे जिसके बाद एग्जैक्टली आपका जो सबसे पहला एम्पलीट्यूड था जिससे आपने स्टार्ट किया, उससे आपका एम्पलीट्यूड कम होते 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 एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली उतना रह जाएगा जो कि ओरिजिनल एम्पलीट्यूड का मात्र 20% हो। अब ना तो आपको ओरिजिनल एम्पलीट्यूड पता है जिसका कि आप 20% निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मन में ये इमेज रखिए
ऐसा ऐसा होता है इसमें। अब ये पूछ रहा है कि कितने साइकिल बीत गए, यानी कि ये एक साइकिल, दूसरा, तीसरा, चौथा। So like this you are continuing to count the cycles। और आपने let us say x नॉट से जर्नी स्टार्ट की थी, you started with x नॉट, and somewhere down the line एक ऐसा xn आया जो कि क्या है, x नॉट का मात्र 20% है। दिस इज 20% ऑफ x नॉट। तो ये पूछ रहा है कि जब ऐसा हो जाएगा तो कितने साइकिल गुजर चुके होंगे। तो ये काउंट करना है आपको, एक, दो, तीन, चार, ये कितना है, एन काउंट करना है। तो कभी भी अगर मिसिंग एम्पलीट्यूड्स वाला प्रॉब्लम आ गया, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये बीच के एम्पलीट्यूड्स गायब करके सीधे फर्स्ट एम्पलीट्यूड दे रहा है और 20% बचा हुआ एम्पलीट्यूड दे रहा है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस इक्वेशन को एक बार लिख लो। तो वी से दैट डेल्टा इज इक्वल टू 1/n एक्स नॉट अपॉन एक्स एन। लेकिन अब आपको ना तो एक्स नॉट पता है ना एक्स एन पता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक्स एन और एक्स नॉट के बीच का रिश्ता तो पता ही है। यू नो कि इफ इनिशियल एम्पलीट्यूड इज एक्स नॉट, then xn is such that it is only 0.2 times x नॉट। तो ये xn को 0.2 टाइम्स x नॉट को यहाँ पे फीड कर दो, ये हो जाएगा 0.2 टाइम्स x नॉट। x नॉट और x नॉट कैंसिल हो गए, eventually you are left with delta is equal to 1/n times 1/0.2। ठीक है, 0.2 और 1 को कैसे अपन डील करेंगे, 5 आ गया। और यहाँ पर एक ln भी है, देयर इज एन ln आल्सो फॉर्मूले में, ln ऑफ दिस, ये देखो 1/n ln ऑफ दिस रेशियो। ठीक है, so you have to take ln also। So eventually I have this delta is equal to 1/n ln of 5। मेरे को ये n निकालना है। This n is going to give me the number of cycles after which this 20% reduction is going to happen। तो अब मुझे डेल्टा तो पता होना चाहिए। डेल्टा पता है क्या, बिल्कुल पता है, अपन ने निकाल लिया है डेल्टा 0.546। तो जस्ट पुट इट हियर, delta is 0.546, this is equal to 1/n ln of 5। बस अब n भी निकल गया। So the number of cycles should be equal to ln of 5 divided by 0.546। Now let me see how much it comes out to be, ln of 5 divided by 0.546। So this is coming out to be approximately equal to 2.95। Now, since we are talking about number of cycles, so it is better that you approximate it to a round figure। ठीक है, आप ये मत कहो कि भाई 2.95 साइकिल्स के बाद ऐसा होगा। 2.95 cycles can be rounded off to 3 cycles। So your final answer is preferably 3 cycles। This is how you solve all the problems using the formula। So you see we have made use of almost all the formulae here। कुछ formulae अभी भी unused हैं, but we will take up some additional problems जिससे कि वो भी clear हो जाए। So let us take a problem of rotary dynamics now। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं, ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। रोटरी डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, उसमें लीनियर डायनामिक्स के याद किए हुए फॉर्मूले के ऑल्टरनेट फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैंने आपको क्लास में करवा दी है, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस विद सम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2,
A disk of a torsional pendulum is given. That means basically a torsional pendulum is given. टॉर्शनल पेंडुलम की जैसे ही बात आए, आपको पता है फिगर कैसा होगा। हालांकि ये फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, बट यू कैन गो अहेड एंड ड्रॉ दिस, बना लो, क्योंकि यही है टॉर्शनल पेंडुलम, सबको पता है। So the disc has a moment of inertia of 600 kilogram centimeter square. So this is the given data. क्या क्या given है torsional pendulum के लिए? The moment of inertia of the disc is given. It is given as 600 kilogram centimeter square. Now you see, as soon as you encounter some undesired units का मतलब हम सेंटीमीटर नहीं चाहते, हम मीटर चाहते हैं, बिकॉज दैट इज द एसआई यूनिट, राइट। तो आपको जहां डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, आप वहीं का वहीं उसको कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर करूंगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली 600 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 600 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 का स्क्वायर, that is 600 divided by 1 and 4 zeros. So this becomes 0.06. तो ये कन्वर्जन कर लिया मैंने, 0.06 वैल्यू अब मैं यूज करूंगा, 600 नहीं यूज करूंगा। सो I इज इक्वल टू 0.06 किलोग्राम। अब मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर। Okay, I is given. And now another data that says is that this torsional pendulum is immersed in a viscous fluid. तो इसको एक डिब्बे में उतार रखा है इस तरीके से, and some viscous fluid is covering the entire disc. अब विस्कस फ्लूइड में अगर ये डिस्क राउंड राउंड चक्कर काटेगा, तो सीधी सी बात है, इस पूरे सिस्टम पे विस्कस डैम्पिंग आएगी। आ गया वापस से विस्कस डैम्पिंग केस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। द शाफ्ट इज मेड ऑफ ब्रास। ब्रास की शाफ्ट है और इसकी भी डेटा दे रखी है। द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर्स। The diameter of the shaft is given as, sorry, length is 40, length 40 सेंटीमीटर है, डायमीटर d is equal to 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर डायमीटर है और लेंथ 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये चीज भी अपन को सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, तो इमीडिएटली इस डेटा को डिस्कार्ड कर देते हैं अपन। 10 सेंटीमीटर का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, 0.1 मीटर, ठीक है। तो d is equal to 0.1 meters. 40 centimeters is the length, so L is equal to 0.4 meters. Now it is in the desirable format. Now when the pendulum vibrates, it is observed that the amplitudes on same side in successive cycles are 9 degree, 6 degree and 4 degree. इसका क्या मतलब है? ये बोलता है कि भाई डिस्क का एक मीन पोजीशन पकड़ लो, ठीक है। ये आपकी टॉर्शनल पेंडुलम है और ये डिस्क का एक मीन पोजीशन पे एक लाइन लगा दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक लाइन बना दिया। नाउ व्हेन द डिस्क इज ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग, तेल के अंदर पड़े पड़े जब ये ट्विस्ट और अनट्विस्ट हो रहा है, तो पहले तो ये लाइन आपकी यों घूमती हुई यहां तक आई, और ये कितना था, 9 डिग्री। फिर उसके बाद ये उधर को गई, फिर वापस इधर को आई, लेकिन अब ये धीरे धीरे एम्पलीट्यूड लूज कर रहा है,
तो इसका मतलब है कि अब की बार ये 9 डिग्री तक नहीं जा पाएगा। कितने तक जाएगा? ये इधर तक ही जा पाएगा। एंड नाउ दिस इज 6 डिग्रीज। फिर ये इधर से इधर वापस गया, फिर यहाँ से आया उल्टा। तो अब की बार ये 6 डिग्री तक भी नहीं जा पाया। अब की बार कितना गया? 4 डिग्री। तो द consecutively reducing amplitude बट दिस टाइम काउंटेड इन डिग्रीज। देखो टॉर्शनल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड जो है वो एक्स और वाई से नहीं नापा जाएगा, वो थीटा से नापा जाएगा, सीधी सी बात। तो पहला एम्पलीट्यूड यानी कि स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड जो था थीटा नॉट, वो है 9 डिग्रीज। सेकेंड एम्पलीट्यूड थीटा वन, वो 6 डिग्रीज। और थर्ड एम्पलीट्यूड थीटा टू, दैट इज 4 डिग्री। ये डेटा भी दे रखा है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स। फर्स्ट, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकालो, यानी डेल्टा निकालना है, ठीक है। सेकंड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन निकालना है, ठीक है। अनदर इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट मटेरियल इज गिवन। It is 4.4 into 10 to power 10 Newton per mm square, ठीक है। सॉरी, दिस इज मीटर स्क्वायर। दिस इज ऑलरेडी इन एसआई यूनिट्स, तो अपन को ये कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है। जो शाफ्ट है आपका, इसकी जो जी वैल्यू है ये दे रखी है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो लेट अस स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा। दो चीजें निकालनी है आपको, टाइम पीरियड एंड डेल्टा। डेल्टा का क्या फॉर्मूला है? सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, देखो क्या चीज गिवन है, कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू गिवन है। डेटा वेटा अपन को पता नहीं है। तो कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स अगर आपको पता है, देन यू नो दैट यू कैन ईदर यूज दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, ठीक है। लेकिन नीचे वाला इक्वेशन अपन स्पेसिफिकली तब यूज करते हैं जब अपन को बीच की एम्पलीट्यूड्स गायब हो। लेकिन यहाँ पर बीच की एम्पलीट्यूड गायब नहीं है। यहाँ पर थीटा नॉट के बाद थीटा वन पता है, थीटा वन के बाद थीटा टू पता है। तो कोई सी भी दो ले लो, या तो थीटा वन और थीटा टू का सेट ले लो, या फिर थीटा नॉट और थीटा वन का सेट ले लो। या फिर अगर किसी को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है तो वो थीटा नॉट और थीटा टू का भी सेट बना सकता है, लेकिन उस केस में वो ये फॉर्मूला यूज करेगा, ठीक है। लेकिन अपन उल्टा सीधा क्यों चले, अपन तो सीधे सीधे कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स पे चलते हैं। फॉर दैट कोई भी ले लो, या तो थीटा नॉट थीटा वन ले लो। तो अपन एक काम करते हैं, थीटा नॉट और थीटा वन का सेट बना लेते हैं, ठीक है। और अब इस फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या बोलता है, माई डेल्टा शुड बी इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ, पहला कौन सा है थीटा नॉट और थीटा वन में से, पहला है थीटा नॉट, डिवाइडेड बाय दूसरा वाला कौन सा है, सेकंड कॉन्सिक्यूटिव जो है उसके बाद वाला थीटा वन है। तो मेरे डेल्टा का फॉर्मूला अब ये हो गया। इसमें एक्स और वाई नहीं है, इसमें एम्पलीट्यूड थीटा से दिया जा रहा है, तो आई डोंट केयर, थीटा है तो थीटा है, ठीक है। यूनिट इसकी जो भी हो, डिग्री हो रेडियन हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट माई डेल्टा एज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ थीटा नॉट कितना है, 9 है, थीटा वन 6 है, तो आई सिंपली पुट इट एज 9/6, ठीक है। कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 6 इज पॉइंट, तो माय आंसर इज रेडी, डेल्टा इज इक्वल टू 0.405। दिस इज माय आंसर। इसकी यूनिट है ही नहीं कुछ भी, सो नो यूनिट। तो द फर्स्ट आंसर इज ऑलरेडी हियर।
डेल्टा इज 0.405। ठीक है, अब टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? अपने को पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बट इफ द वाइब्रेशंस आर अनडैम्प्ड, यानी डैम्पिंग नहीं है, तब तो 2 पाई अपॉन ओमेगा एन से निकल जाएगा। लेकिन अगर डैम्पिंग है तो टाइम पीरियड निकलेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा डी से, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी होगी। और ओमेगा डी का क्या फॉर्मूला है? इट इज ओमेगा एन अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के टाइम पीरियड मेरे को, अभी तो मेरे डैम्पिंग हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि मेरा डिस्क विस्कस फ्लूइड में डूबा हुआ है। इट इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड। तो 100% डैम्पिंग हो ही रही है यहाँ पे। तो my time period would be calculated by 2 pi upon omega n under root 1 minus zeta square। अब इसमें ओमेगा एन मुझे पता है, इट इज अंडर रूट ऑफ के टी अपॉन आई। देखिए, फटाक से हर बार ओमेगा एन को के बाय एम मत लिखना, ये तो लीनियर मोशन के लिए है। आपका लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, इट इज अ टॉर्शनल पेंडुलम। सो यू हैव अ रोटर एंड शाफ्ट। तो उसके लिए के टॉर्शनल निकलेगी और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगा। ये है यहाँ पे गड़बड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, देखते हैं कहाँ तक जाती है कहानी। तो एनीवे, I can write that I will get my time period if I can find this or solve this calculation। ओमेगा एन की जगह पे अंडर रूट के टी बाय आई लिख देता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर से। तो आई हैव टू कैलकुलेट दिस फिगर। इसको कैलकुलेट करना है। आई मेरे को ऑलरेडी गिवन है, देख लीजिए, गिवन डेटा है 0.06 डिस्क का, तो ये तो पता लग गया, दिस इज ओके। अब मेरे को जीटा कहीं से लाना है और के टी कहीं से लाना है। टॉर्शनल पेंडुलम के लिए कई बार अपन डिस्कशन कर चुके हैं। द टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट इन द केस ऑफ अ टॉर्शनल पेंडुलम इज गिवन बाय जी जे अपॉन एल, where g is the modulus of rigidity of shaft material, j is the polar moment of inertia of cross sectional area of the shaft, and l is the length of the shaft। अब देखें इसमें कौन कौन सी चीजें आपके पास में मौजूद है। जी की वैल्यू एसआई यूनिट्स में दे रखी है, बहुत अच्छी बात, नोट कर लेते हैं। 4.4 इंटू 10⁻10। जे कैसे निकलेगा? आपको पता है कि शाफ्ट अधिकतर सारे के सारे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के होते हैं, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे का फॉर्मूला क्या है? इट इज पाई टी रेज टू पावर 4 बाय 32। तो ये जे जो है, इसके लिए आपको आपके पतले शाफ्ट का ये डायमीटर चाहिए होगा, यू नीड द स्मॉल डी। ठीक है, ये भी गिवन ही है अपने डेटा में। द डायमीटर ऑफ योर शाफ्ट, यस इट इज 0.1 मीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। सो J will be calculated as pi into 0.1 raised to power 4 divided by 32। ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, pi multiplied by 0.1 raised to power 4 divided by 32। So this is 9.82 multiplied by 10 raised to power minus 6 meter raised to power 4। This is the value of J।
G की वैल्यू 4.4 10 to power 10, L की वैल्यू, the length of shaft is given as 0.4 meters. सारे इंफॉर्मेशन तैयार है। अब अपन KT निकाल सकते हैं, जी जे अपॉन एल। ठीक है, लेट मी जस्ट कैरी आउट द कैलकुलेशन फॉर यू। इट्स 4.4 इंटू 10 to power 10 जी हो गया, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल जे की वैल्यू है 9.82 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻⁶। ठीक है, G into J divided by L, which is 0.4. So this divided by 0.4 will eventually give me the value of KT as 1080,200। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी? अगर मेरा लीनियर में K होता तो ये फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी यूनिट तो हो गई, फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। तो अगर लीनियर स्प्रिंग होता तो के बाई एम, सॉरी के जो है आपका न्यूटन पर मीटर होता। लेकिन टॉर्सनल स्प्रिंग क्या होती है? दिस गिव्स यू टॉर्क पर यूनिट थीटा और टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, डिवाइडेड बाय थीटा की यूनिट होती है रेडियन। So the unit of K suffix T or torsional stiffness is Newton meter per radian। KT निकाल लिया अपन ने। ठीक है, क्या चाहिए? KT तो नहीं चाहिए। We need to evaluate this complete expression to find the value of time period। तो I है अपने पास, KT है अपने पास, अब चाहिए जीटा। जीटा कहाँ से लाएं? ठीक है, अब देखो जीटा और डेल्टा के बीच में एक रिलेशनशिप आपको पता है। डेल्टा तो निकाल लिया आपने। नाउ वी मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से एक काम की दूसरी इक्वेशन और आ जाती है, वो या तो आप याद रख लो और ना चाहो तो ना भी याद रखो। ठीक है, कैसे आता है मैं ये दिखा देता हूँ कि अगर डेल्टा पता हो तो जीटा निकाल सकते हैं क्या, उससे उल्टा। ये फॉर्मूला क्या देता है आपको कि डेल्टा निकालिए अगर जीटा पता है तो, यानी कि जीटा पता है तो 2 पाई जीटा डाला, √1 - जीटा स्क्वायर डाला और डेल्टा पता कर लिया। अब उल्टा क्वेश्चन है, अगर मुझे डेल्टा पता है और जीटा नहीं पता तो क्या मैं इसी इक्वेशन को यूज करके जीटा निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखिए आप। स्क्वायर बोथ साइड्स, तो आई गेट डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जीटा स्क्वायर अपॉन, नीचे अंडर रूट है तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, 1 - जीटा स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑन द राइट हैंड साइड। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जीटा को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें से। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर जीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जीटा स्क्वायर। जीटा को आइसोलेट करना मेरा पर्पस है, तो इस वाली टर्म को इधर ले जाता हूँ। तो आई विल गेट डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर जीटा स्क्वायर। Now I can take zeta square common here. I will be left with 4 pi square plus delta square. So eventually I have delta square equal to zeta square multiplied by 4 pi square plus delta square। अब zeta को अकेला पकड़ने के लिए इस टर्म को नीचे ले जाओ अब यहाँ पे। तो this will give me delta square upon 4 pi square plus delta square
this whole term is equal to zeta square. Now I can isolate zeta if I take the under root on both sides. ठीक है, तो फाइनली मेरे पास एक नया फॉर्मूला भी आ गया, जीटा इक्वल टू डेल्टा अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। अगर आपसे हो सके तो इसको भी याद कर लो, आपको नोट्स में मैंने ये चीज नीचे डिराइव करके दे रखी है, आपके नोट्स में ये डेरिवेशन ऑलरेडी है और इसको भी मैंने बॉक्स कर दिया है, तो इसका मतलब है फ्रॉम माय साइड आई एम एडवाइसिंग यू टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। ये भी ऐड कर लो भाई आपके स्टैंडर्ड सेट ऑफ इक्वेशंस में। आपने 7 इक्वेशंस तक तो बना ही ली थी, फिफ्थ वाली इक्वेशन से निकल के आती है ये वाली इक्वेशन, तो एक सब्सिडियरी इक्वेशन और बना लो, इक्वेशन नंबर 8। जीटा इज डेल्टा अपॉन अंडर रूट ऑफ डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर। ये सेम फॉर्मूला है, फिफ्थ फॉर्मूला और एट्थ फॉर्मूला एक ही है, बस इसमें फर्क क्या है, फिफ्थ फॉर्मूले में जीटा पता है और उसको यूज करके डेल्टा निकल रहा है, और एट्थ फॉर्मूले में इसको अपन ने ऐसा रीअरेंज कर लिया कि डेल्टा पता हो तो जीटा निकाल लो इससे, ऐसा कर दिया अपन ने। आई विल जस्ट शो यू, दिस इज योर एट्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन और एट्थ इक्वेशन एक ही है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना डेरिवेशन टाइम अगर बचाना चाहें तो एट्थ इक्वेशन को एडिशनली याद रख लें, ठीक है। और अगर नहीं याद रखना चाहे, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं जल्दी से एग्जाम हॉल में इसको आजू बाजू मल्टीप्लाई स्क्वायर सब करके निकाल लूंगा, देन ओके, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। एट्थ इक्वेशन में डेल्टा डाल के जीटा निकालते हैं और फिफ्थ इक्वेशन में जीटा डाल के डेल्टा निकालते हैं, दिस इज द थिंग। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हमको क्या चाहिए था, हमको जीटा चाहिए, जीटा की वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन डेल्टा पता है, डेल्टा आपने निकाल लिया, दैट इज 0.405। तो अब अपन इससे जीटा निकाल लेंगे। 0.405 डाल दिया डेल्टा की जगह, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर प्लस डेल्टा इज अगेन 0.405 इसका स्क्वायर, ठीक है। सो जीटा इज, लेट मी डू द कैलकुलेशन फॉर यू, 0.405 divided by under root of 4 pi square plus 0.405 square. It is 0.0643. लेकिन ये आंसर नहीं है अपना, अभी तो जीटा की वैल्यू निकाली है आपने, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। तो अब आप जीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दें। नाउ एवरीथिंग इज नोन टू यू, आपने केटी निकाल लिया, आपने आई निकाल लिया, आपने जीटा निकाल लिया, ठीक है। You put your value inside this equation and then you find the time period. अब मैं इसका कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहा हूँ because this is simple calculation, you just substitute it and find the time period. तो अपन ने एक रोटरी डायनामिक्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है, जिससे कि आई होप यू शुड बी अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट। एक छोटा सा क्वेश्चन और कराता हूँ बिफोर वी पार्ट वेज फ्रॉम दिस लेक्चर, जिससे कि आपको थोड़ा और इक्वेशंस की यूसेज पता लग जाए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 से कि भाई मैं आपको एक सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है, सिस्टम में स्प्रिंग लगा है 7840 न्यूटन पर मीटर, सिस्टम में मास लगा है 2 kg, ठीक है। और सिस्टम विस्कस डैम्प्ड है
विस्कस अंडर डैम्प्ड है। ठीक है साहब। एंड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट वाज कैलकुलेटेड फॉर यू। बोला बता दो भाई कितना है। बोला कि इट इज 0.2। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। If there is a certain system which is undergoing viscous underdamped, ये undamped नहीं है, सॉरी underdamped है। It is undergoing viscous underdamped oscillations। तो viscous underdamped है तो इसकी logarithmic decrement तो निकल ही सकती है। logarithmic decrement निकालने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और डेल्टा निकाला। अभी आप शायद हो सकता है ये सोच रहे हो कि अच्छा ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और आपकी वाइब्रेशन लैब में हम ये काम करेंगे भी। वी विल फाइंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो एनीवे फॉर नाउ वी आर जस्ट टेकिंग द वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा एज 0.2। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल डैम्पिंग कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। यानी कि उस सिस्टम में कोई डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी की वैल्यू तो रही होगी। और आपको पता है कि किसी भी विस्कस डैम्प्ड सिस्टम को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। so there is a mass, there is a spring and there is a damper। so now in this case the question is to find the unknown value of c। c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्या क्या इक्वेशंस लगाएंगे। सी कहाँ कहाँ पे मिलता है अपने को, यहीं से चालू करो क्योंकि सी पता करना है। सी कौन कौन से इक्वेशन में दिख रही है आपको? गो टू द इनिशियल लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। देखो सी का फॉर्मूला है, उसमें तो सी कहीं आता नहीं है। ओमेगा एन के फॉर्मूले में सी कहीं आता नहीं है। बस एक ही जगह है जहां सी बैठा हुआ है आपके फॉर्मूले में, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ जीटा एज द रेशियो ऑफ सी अपॉन सी सी। ठीक है, तो अब एक ही फॉर्मूला है जिसमें सी मिल सकता है तो वो ले लो। और क्या करेंगे? तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। वी नो दैट जीटा इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी। तो सी कैसे निकल सकता है? सी मेरा निकल जाएगा जीटा मल्टीप्लाइड बाय सी सी से। सी सी को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब मेरे को सी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो ये बताओ कि जीटा कितना है, और एक ये बताओ कि ये सी सी कितना है। ये दो चीजें ले आओ तो सी मिल जाएगी। नाउ दोज हु आर इंटेलिजेंट एंड दोज हु आर कॉन्फिडेंट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम योरसेल्फ। अपने आप ही कर सकते हो। ठीक है, बाकी लोग जिनको अभी भी आइडिया नहीं है कि इसको कैसे करेंगे, यू कैन फॉलो द रेस्ट ऑफ द वीडियो। सी सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कीजिए, 2√km। के और एम दिया हुआ है तो मैं जल्दी से इसका कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 2√7840 एंड 2। so my cc should be, let me take the calculator, it's 2 multiplied by under root of 7840 into 2। so my cc is 250.44 न्यूटन सेकंड पर मीटर। cc तो पता लग गया था। इट इज डन। अब जीटा कहां से लाऊं? अब देखो ये फिर वही कहानी है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट दे रखा है। तो आपको पता है अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया था, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जीटा if logarithmic decrement is known। For that we use the new formula, zeta is equal to delta upon under root of 4 pi square plus delta square। यही फॉर्मूला है अपना, चेक कर लेते हैं। डेल्टा अपॉन अंडर रूट ऑफ डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2 दे रखी है। लेट अस सब्स्टिट्यूट इट हियर।
0.2 divided by under root of 4 pi square plus 0.2 का square. Let me once again make use of my calculator and give you the value of zeta. 0.2 divided by under root 4 pi square plus 0.2 square. So zeta is 0.032 approximately. I have eliminated some decimal values. So zeta is approximately 0.032. अब cc मुझे पता लग गई है, zeta मुझे पता लग गई है. Now I know zeta also. हो गया अब cc का काम. Sorry, c मिल गया है. I will just use this space here. So my c is equal to zeta कितना है 0.032 multiplied by cc कितना है 250.4. इसकी ओवरऑल यूनिट भी वही आएगी जो सीसी की है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर. ये आप कैलकुलेट कर लीजिए. दिस शुड गिव यू द आंसर. So with this, I am pretty much confident that you must have understood the usage of the formulae that were used in viscous damping topic. और जैसा मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में एक एक्सरसाइज एडिशनल करी, और ये एक्सरसाइज मैंने इसीलिए करी कि भाई सारे नॉन फॉर्मूले तो ऑलरेडी मैं नोट्स में मैंने दे दिया है आपको. बट दिस इज टू एम्फसाइज वेरी वेरी क्लियरली कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करें, हर टॉपिक को लेकर के एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, जैसे विस्कस डैम्पिंग में कौन कौन से फॉर्मूले हैं एक साथ लिख लिए सारे नंबर वाइज, जैसे जैसे वो अपीयर हुए आपके नोट्स में उसी तरीके से आपने इसको लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बना दिए. और इसको जब भी टाइम मिले लिस्ट ऑफ फॉर्मूले को टेक इट अप एंड रिवाइज इट, रिमेंबर इट, इम्प्रिंट इट इन योर माइंड्स. इसको अच्छी तरह से रट लो, याद कर लो. और इस तरह से होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में नंबर वाइज याद है आपको सारे. जीटा की वैल्यू क्या है, सी वाई सी सी है, सी सी क्या है 2 रूट के एम है, ऑल्टरनेट भी है 2 एम ओमेगा है, सब रटा हुआ है. याद कर लो अच्छी तरह से ताकि न्यूमेरिकल में भी स्पीड बढ़ जाए. इस तरह से करोगे तो वाइब्रेशन इंजीनियरिंग या सॉरी आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन जो सब्जेक्ट है, इट इज हाईली स्कोरिंग. अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स इसमें फेल होते हैं क्योंकि वो अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मेहनत नहीं डाल पाते. लेकिन आप डालो, आपको कौन रोक रहा है. कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ है, घर पे बैठे हो, बीइंग अ स्टूडेंट आपके पास में पढ़ाई के अलावा और कोई भी कर्तव्य नहीं है आज की तारीख में. देयर इज नो बाउंडेशन. ठीक है. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स, मैं सबके लिए जनरल तो नहीं कह सकता, सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी heavily involved in their household duties also. कुछ हैं बच्चे काफी कम उम्र में जिम्मेदार हो जाते हैं, जैसे कि माँ बाप के साथ में उनको लग करके काम करना पड़ता है. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सिटी ड्वेलिंग स्टूडेंट्स एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, उनके पास में पढ़ाई ही प्राइमरी काम है और कुछ नहीं है. तो आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए. इस टाइम को लाइटली मत लीजिए कि अभी यार क्लास भी नहीं है, छुट्टी है, घर पे बैठो आराम से टीवी देखो, मूवीज देखो. नो, यू इन्वेस्ट टाइम एंड स्टडी. ठीक है. तो विद दिस एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ एडवाइस, उससे भी आप परेशान हो सकते हो. I hope this was a fruitful exercise for you. Please prepare well for your first midterm exams. Okay. And I have prepared this index up to lecture number 20. आपको एक इंडेक्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स दिया था. तो ये आज का अभी जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है उसके साथ में 20 लेक्चर्स आपके फर्स्ट मिड टर्म का सिलेबस बन जाते हैं. ठीक है. इन 20 लेक्चर्स में जो कुछ आपको पढ़ाया है, जिस जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आए हैं, उसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा. तो प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड बेस्ट ऑफ लक. आई विल सेंड दिस रिवाइज्ड इंडेक्स टू यू. इसमें ये 20 लेक्चर तक के जो रिवाइज्ड लिंक्स हैं विथ, इसमें ये भी है कि कौन से लेक्चर नोट से कौन सा टॉपिक आ रहा है, और टॉपिक वाइज सब टॉपिक भी लिखे हुए हैं कि हिस्टेरेटिक डैम्पिंग पढ़नी है तो इस वीडियो पे चले जाओ, डिस्कस डैम्पिंग अंडर डैम्पिंग पढ़नी है इस वीडियो पे चले जाओ.
सिर्फ क्लिक करना है, सीधे वीडियो खुल जाएगा आपका। ठीक है, आई विल सेंड दिस अपडेटेड एक्सेल लिंक टू यू। 20 lectures is the syllabus of your first midterm। ठीक है,